और वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए सीधा वहीं लिए चलते हैं आपको। औपचारिक रूप में कर्नाटक की आने वाले विधानसभा जिसकी नॉमिनेशन 13 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख तक चलेगा और 10 मई को चुनाव होगा। आप लोगों के मन में भी उत्कंठा थी। इस बार पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने के नाते विधानसभा स्तर की ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, पार्टी की रिस्पॉन्सिबल कार्यकर्ताओं की कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरा किया। इसी महीने, पिछले महीने की 31 को, फिर फर्स्ट और सेकेंड कर्नाटक के सारे 31 जिले में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। 25,000 से ज्यादा ग्रासरूट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, संगठन के कार्यकर्ता उस कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट किए। फिर 1 और 2 तारीख में कर्नाटक की डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीडरशिप से स्टेट की लीडरशिप, हमारे नेता आदरणीय येदियुरप्पा जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बोम्मई जी, प्रदेश के अध्यक्ष नलिन कटील जी तथा तमाम वरिष्ठ नेता जिला की लीडरशिप से चर्चा किया। फिर 4-5-2 दिन स्टेट इलेक्शन कमेटी बेंगलुरु में बैठी। उन्होंने पैनल बनाया, विधानसभा स्तर की रिकमेंडेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिकमेंडेशन, उसको लेके डिटेल पॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए हमने फिर स्टेट इलेक्शन कमेटी को के अंदर हम लोग मिले। फ्रेंड्स, आज बीजेपी जो डेमोक्रेटिक पार्टी, we have run through a consultation process starting from assembly level to state level, involving more than 25,000 grassroots worker, activist, political responsible representative. We have completed our consultation process. Karnataka State Election Committee recommended a panel of names to Central Election Committee. Central Election Committee, in the august presence of our Honorable Leader, Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, National President Sri Jagat Prakash Nadda ji preside over the meeting. All the important leaders, Honorable Rajnath Singh ji, Honorable Amit Shah ji, National Organizing Secretary B.L. Santosh ji, and all the senior leaders participated in the election committee, Central Election Committee, with detailed deliberation. Today, with the recommendation of Central Election Committee, now we are going to announce 189 candidates for forthcoming assembly election of Karnataka. Before formally announcing the candidates, if I say in one sentence what is the basic feature of this consultancy process and what is the outcome, मित्रों, एक राजनीतिक और प्रजातांत्रिक पार्टी के नाते, डेमोक्रेटिक पार्टी के नाते इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 21वीं सदी में
the people of this country has again and again reposed faith on Bharatiya Janata Party and our leader Sri Narendra Modi ji. In his leadership, India will go to a new heights. He is a visionary leader. Now we are popularly coined a word, double engine Sarkar. This is now accepted by almost all the states, and whether it is a provincial election or election for Government of India, election for Parliament of India. And today, youthfulness, freshness, new representative with new ideas, leader for next generation. And we all know Karnataka has its own character. Karnataka is citadel of knowledge, citadel of new economy. 21वीं सदी की भारत नहीं दुनिया की नई अर्थनीति की एक प्रमुख स्थान कर्नाटका है। उस कर्नाटका की विधानसभा में एक नया जनरेशन की लीडरशिप आए, फ्रेश आइडियाज के साथ आए, नयापन के साथ आए। मैं एक ही कैरेक्टर आज इस चुनाव समिति की रिकमेंडेशंस के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कर्नाटक की चुनाव प्रक्रिया इज ऑन। वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड different mass contact programs by party and the popular government of Sri Bommai ji, and Prime Minister Modi himself campaign and went to all part of state, and further he will also campaign for the state in the election. And with today's declaration of our candidate, the process is a step ahead. I will request my colleague Sri Arun Singh ji to formally announce the candidates and its different features. मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। गांव गरीब किसानों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और जो भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा में, वहां भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत सफलता प्राप्त हो रही है। जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे है, भारतीय जनता पार्टी पे है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है और जहां तक कर्नाटक का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में डिवीजन है, ग्रुपिज्म है और जेडीएस एक सिंकिंग शिप की तरह डूबता जा रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने कर्नाटक में अद्भुत तैयारी की। आज हमारा संगठन अभेद्य संगठन है, बूथ तक संगठन बना हुआ है। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टोली, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की हमारे पास है। वहीं केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्नाटक के लिए किए गए काम, क्योंकि कर्नाटक की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अद्भुत प्रेम करती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर्नाटक को विशेष राहत भी दी गई। अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा दिया गया। अगर बंगलोर से मैसूर का एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन हुआ, पहली वंदे भारत ट्रेन चली। कर्नाटक आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नंबर 1 है और उस एफडीआई नंबर सबसे अधिक कहीं आ रहे थे, कर्नाटक में आ रहे। उसी के साथ इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटक नंबर 1 है। कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ वहां पे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का भी बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में उनकी जो छवि है, कॉमन मैन की छवि है। चाहे किसान राहता निधि हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से 39 लाख लोगों के घर तक पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे अन्य योजना पेंशन से लेकर के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कर्नाटक की जनता को लाभ मिला है। और सीधे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए कर्नाटक की जनता देती है कि सभी के बैंक अकाउंट खुले और सीधे उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। जो कांग्रेस की जब सिद्धरमैया की सरकार थी तो बड़ी लीकेज होती थी क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं खुले थे। आज कर्नाटक में
जो भी पैसा केंद्र और राज्य सरकार का जनता के लिए जाता है सीधे उनके अकाउंट में है। इसलिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान हुए, चाहे बूथ विजय अभियान हो, चाहे विजय संकल्प अभियान हो, चाहे उस विजय संकल्प यात्रा हो, अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। हम सबको गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बूथ तक जाकर के उन्होंने दीवार लेखन का काम किया, पत्रक बांटने का काम किया। इसलिए माहौल हमारे पक्ष में है और कांग्रेस का बिल्कुल मुद्दा विहीन पार्टी है, कोई न विजन है न उनके पास लीडर है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो धरातल पे नहीं है, केवल मैनेजमेंट में लगी है, वह कांग्रेस पार्टी धीरे 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 वो नीचे जा रही है। और हम पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। जैसे हमारे जिले के, जब प्रदेश की जो चुनाव समिति है, उन्होंने पैनल बना के अपने रिकमेंडेशन को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में 9 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठा और माननीय प्रधानमंत्री जी की उसमें उपस्थिति थी। माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी सहित सभी चुनाव समिति के सदस्यों ने वह जो प्रदेश की चुनाव समिति थी ने रिकमेंडेशन किया था, उन नामों पे चर्चा की। उसके बाद जैसे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया, 189 इतने सीटों की उन्होंने क्लियरेंस दी, जिसकी आज हम घोषणा करने वाले हैं। ये नाम पढ़ने से पहले एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी विशेषता अगर देखेंगे इस पूरी सूची में, तो आपको दिखेगा कि पूरी सूची में जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट, नए लोगों को मौका देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसमें से 52 लोग ऐसे हैं जिनको, नए लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव के लिए चुना, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इसलिए पुराने लोगों का समन्वय, उनका ध्यान रखते हुए नए लोगों को अधिक से अधिक मौका देने का काम ये अकेली पार्टी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें सबसे अधिक ओबीसी समाज के लोगों को 32 कैंडिडेट उनको दिया है। उनको ओबीसी को 32, एससी को 30, एसटी को 16। यस, ओबीसी 32, एससी 30, 30, एसटी 16, 16 और उसी के साथ साथ फ्रेश कैंडिडेट, देयर आर 52 फ्रेश कैंडिडेट टू हुम द न्यू कैंडिडेट टू हुम द पार्टी हैज गिवन द चांस। यही पार्टी की में, हमारे भारतीय जनता पार्टी में खासियत है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी सूची में 9 डॉक्टर हैं। देयर आर 9 डॉक्टर्स इन द लिस्ट। 9 डॉक्टर हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं, आईपीएस भी हैं। इसके साथ संख्या मैं बताता हूं। और पीएचडी किए हुए पोस्ट ग्रेजुएट 31 लोग पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। इसमें महिलाएं, हमारे सूची में 8 महिलाएं हैं जो टिल नाउ 8 यस, आउट ऑफ 189। अब हम प्रोफेशनल लिख लीजिए, फिर मैं नाम शुरू करता हूं। प्रोफेशनल में देर आर 5 एडवोकेट्स, 5, हाँ, 9 डॉक्टर, देन एजुकेशन एकेडमिशियन 3, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर 1, आईपीएस 1, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर, नाम बताते हैं अभी आपको। भास्कर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3, सोशल एक्टिविस्ट, उनकी संख्या 8 है।
तो इस पूरे बास्केट में आप देखेंगे तो सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने उचित स्थान दिया है। विशेष रूप से जो ऐसे लोग तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। 189 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 52 नए और युवा उम्मीदवार बीजेपी ने बनाए हैं। फिलहाल के